Hello student, today we discuss the chapter number 12 from part 2 India, People and Economy, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, and the chapter 12. According to this chapter, today we discuss some types of points, and according to points we can say environment. What is the meaning of environmental pollution? What are the types? Water pollution, air pollution, land pollution and noise pollution. What are the major causes of these types of pollution and how can you control these types of pollution problems? After that, what is the meaning of the urban waste and what are the problem creates due to the urban waste? How can you control these types of problem? What is the meaning of the slums area and how can you describe the problem of slum area mainly in the reference of Dharavi? What is the meaning of the land degradation and what are the causes responsible for the land degradation and how can you control of this problem? Now we discuss in detail what is the meaning of environmental pollution. Some unwanted elements involved in the environment and these elements are so harmful for the human beings. They are harmful for the environment. They decrease the quality of environment. That is done as the environmental pollution. भाई वो सभी चीजें जो पर्यावरण में मिलकर के उसकी गुणवत्ता को नष्ट कर देती हैं, उसको मानव के लिए हानिकारक बना देती हैं, अर्थात वो पर्यावरण हानिकारक हो जाता है, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं. दैट्स कॉल्ड environmental pollution. After that, what are the major types of it? इसके मुख्य प्रकार क्या होते हैं? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, land pollution, noise pollution. One by one we discuss in details. Water pollution. What is the meaning of water pollution? What are the causes of the water pollution? How can you control the water pollution? Meaning of water pollution. Some types of elements, unwanted elements involved in the water resources, in water bodies, in canals, in wells, in groundwater, and these are responsible for the decrease the quality of water, and this water is so harmful for the human being. Means water quality decrease due to these types of elements. This process is known as the water pollution. Now a question created due to these types of definition. What is the difference between the pollutant and pollution? Pollutant are element. Pollution is process in which the quality decrease in each types of the elements of environment. Then come back on the topic water pollution. Define हो चुका है. जल में ऐसी चीजों का मिलना जो जल की गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं उसे जल प्रदूषण कहते हैं. अब वो कौन सी चीजें हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है? मीन्स व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द वाटर पोल्यूशन एंड हाउ कैन यू कंट्रोल इट? इंडस्ट्रीज, उद्योग जल प्रदूषण में इजाफा करते हैं. उद्योगों का वेस्टेज जब थ्रो किया जाता है सीवेज के माध्यम से, वो नदियों में मिलता है, वो ग्राउंड वाटर में जाता है, तो वो पानी की गुणवत्ता को नष्ट कर देता है. इस तरह औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा, औद्योगिक वेस्टेज आर आल्सो कॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन. इस तरह ये भी जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं. अर्बन वेस्ट. नाउ अर्बन वेस्ट थ्रोन बाय यू फ्रॉम योर हाउस होल्ड, यू कैन से द हाउस होल्ड वेस्टेज थ्रोन बाय यू इन द सीवेज, and sewage are connected to rivers
एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोल्यूशन। आप कई चीजें फेंक देते हैं, नालियों में कूड़ा कचरा वेस्टेज फेंकते हैं, वो फेंका गया वेस्टेज जब सीवेज के माध्यम से नदियों के पानी में मिलता है तो उसकी गुणवत्ता को नष्ट कर देता है। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर कैसे करता है? यू यूज द ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल आल्सो। These pesticides and chemical are responsible for the pollution of the groundwater, and that is the cause of the water pollution. And other than wastage of agriculture is also thrown by the farmer in the different types of canals, and that is also cause of the water pollution. वो यानी कि वेस्टेज को नदियों में भी प्रोवाइड कर देते हैं कई बार, जो अपशिष्ट होते हैं कृषि के द्वारा उत्पादन होने के बाद, तो वो भी जल प्रदूषण का कारण बनते। पावर प्लांट, पावर प्लांट मींस इंडस्ट्रीज हैं, पावर जनरेट करते हैं, उसमें भी बहुत सारा जल जो है, पानी, उसकी गुणवत्ता वो है वो नष्ट हो जाती है, तो पावर प्लांट भी इसका प्रमुख कारण बनते हैं। पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का बता चुके। इसके अलावा जो मेले होते हैं, मेलों में स्नान करने जाते हैं, कुंभ स्नान होता है, हम प्रसाद अगरबत्ती धूप ये प्रोवाइड करते हैं, ये भी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। अस्थि विसर्जन है, वो भी एक प्रकार से जल प्रदूषण का कारण बनता है। गांव में विभिन्न प्रकार के जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उसमें डायरेक्टली सीधे तौर पर कपड़े धोते हैं या दूसरी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिससे भी जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, दैट्स कंप्लीट। एयर पोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एयर पोल्यूशन? What is the meaning of air pollution? वायु प्रदूषण क्या है? Involvement of the unwanted elements, gases, solid in air, and this air is harmful for us. That is known as the air pollution. उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब इसमें वायु में ऐसे तत्व मिलना जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित गतिविधि को प्रभावित करते हैं, सांस लेने में हमें दिक्कत आती है, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? दैट्स सो सिंपल, सो इजी। इंडस्ट्री से धुआं उठता है, वेस्टेज फेंके जाते हैं, उससे दुर्गंध उठती है, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, परिवहन के साधन इतने ज्यादा हो गए हैं, दे क्रिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, उनसे अलग अलग प्रकार की गैसें उत्सर्जित होती हैं और वो गैसें वायुमंडल में मिलकर के वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। फ्यूल्स, ईंधन, गांव में जो लकड़ी उपले यूज किए जाते हैं खाना बनाने में, दूसरी एक्टिविटी में, वो भी कहीं ना कहीं हद तक वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, क्योंकि उससे असंख्य मात्रा में धुआं उठता है। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर इसमें भी आता है। क्यों? फार्मर ओवर यूज द पेस्टिसाइड एंड केमिकल आल्सो टू गेन द हायर प्रोडक्शन फ्रॉम द क्रॉप, सो दैट ही यूज द मोर एंड मोर पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल। These chemical and pesticides create the different types of gases in the atmosphere, and that is the cause of the air pollution. वो अधिक लाभ कमाने के लिए, अधिक उत्पादन लेने के लिए दवाइयां यूज करता है, छिड़काव करता है, केमिकल का प्रयोग करता है, उससे उठने वाली दुर्गंध और गैसें भी वायु प्रदूषण का कारण बनती है। फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवेज, अब फॉरेस्ट फायर वनों में लगने वाली आग, वनों में जो आग लगती है वो भी वायु प्रदूषण का कारण बनती है, क्योंकि वनों में लगने वाली आग या लगाई गई आग से उठने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत हो जाता है। वनों की कटाई करते हैं, वो भी इसका एक मुख्य कारण है। वन की कटाई करते वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मींस वन कटेंगे, क्योंकि वन जो है, पेड़ पौधे जो है, कार्बन लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द ब्रीथिंग, सो दैट जो वनों को कटाई की जाती है वो भी वायु प्रदूषण का एक कारण। सीवेज, अब सीवेज में ओपन सीवेज होते हैं, कई जगह ओपन नालियां होती हैं, खुला पानी बहता है, वेस्टेज बहता है, उसे उठने वाली दुर्गंध भी इसका एक मुख्य कारण जो वायु प्रदूषण का बनती है। दैट्स आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, लैंड पोल्यूशन, या यू कैन से इन अदर वे, यू कैन से द सोइल पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन
involve the some types of unwanted elements in the land, and these are harmful for the fertility of the soil. These are harmful for the production of the crop. That is known as the land pollution. भूमि में ऐसे पदार्थों का मिलना जो उसकी गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं उसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। अब इसमें कारण क्या होते हैं? वही एग्रीकल्चर वेस्ट। कई बार किसान कृषि भूमि के वेस्टेज को फेंक देते हैं, और जहां पर वो फेंकते हैं उस भूमि पर वो वेस्टेज उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इससे भूमि का प्रदूषण होता है। फर्टिलाइजर्स, अनेक रसायन यूज किए जाते हैं, केमिकल यूज किया जाता है। तो जो रसायन और केमिकल यूज होते हैं वो भी भूमि में नाटकीय रूप दे करके एक प्रकार से उसे प्रदूषण करने का कार्य करते हैं, प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। सीवेज, पेस्टिसाइड, अर्बन वेस्ट। सीवेज में भी मेन है। सीवेज का गंदा पानी जब भूमि की ऊपरी परत पर बहता है, ऊपरी परत पर आता है, तो वहां पर भी वो भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। अर्बन वेस्ट, आप कूड़ा कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं भूमि पर, तो वो भूमि पर फेंका गया कूड़ा कचरा है, वो भी एक प्रकार से वेस्टेज का कारण बनता है। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है? अनवांटेड वॉल्यूम्स हार्मफुल फॉर द लिसनिंग पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज द नॉइज पोल्यूशन। मतलब वातावरण में इतनी आवाजें होना जो कि हमारी सुनने की शक्ति को प्रभावित करें, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? नॉइज पोल्यूशन के प्रमुख कारण क्या होंगे? इंडस्ट्रीज, उद्योग, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, शोरगुल होता है, इतनी आवाजें होती हैं, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। उद्योगों में चलने वाली मशीनें। ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधन आवाज करते हैं। ट्रैफिक जाम में अलग अलग प्रकार से शोर होता है, शोरगुल होता है, जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। मेले, फेयर, जो मेले लगते हैं अलग अलग जगह पर, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं, तो उससे भी जो है ध्वनि प्रदूषण जो वो क्रिएट होता है। इलेक्शन, अब इलेक्शन चुनाव जो आते हैं, इलेक्शन में भी लाउड स्पीकर यूज होता है, अनेक लोग इकट्ठा होते हैं, रैलियां होती हैं, उनमें क्या होता है? उनमें इतनी अधिक शोरगुल होता है जो हमारी ध्वनि को प्रभावित करता है, ध्वनि प्रदूषण में इजाफा करता है। मार्केट होकर्स जो होते हैं, रेडी चालक जो होते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, दूसरी चीजें बेचते हैं, स्ट्रीट होकर जो होते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, जिससे भी जो है। इसके अलावा जागरण, निकलने वाले जुलूस, वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। दैट्स कंप्लीट। ये हैं कॉजेस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कॉजेस थे। अब हाउ कैन यू कंट्रोल कैसे करें? अब जितने कॉजेस बताए हैं उन पर रोक लगा करके। इन ब्रीफिंग आई डिस्कस इंडस्ट्रीज क्या है, वेस्टेज पर कंट्रोल किया जाए, प्रॉपर वे में वेस्टेज को जो है उसको किया जाए, रोका जाए उसको। अर्बन वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो, एग्रीकल्चर वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो, पावर प्लांट पे कंट्रोल किया जाए, प्लास्टिक का यूज कम से कम हो, तो हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। इसी तरह एयर पोल्यूशन में जो चिमनियां हैं उनका धुआं कंट्रोल किया जाए, ट्रांसपोर्ट के साधन कम किए जाएं, अच्छे ईंधन यूज किए जाए खाना बनाने में, दूसरी एक्टिविटी में, वन अग्नि को रोका जाए, एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड पर रोक लगाई जाए, सीवेज से उठने वाली दुर्गंध को कंट्रोल किया जाए, तो एयर पोल्यूशन को। लैंड पोल्यूशन में भी सेम है, जैसे ये बताएं, एग्रीकल्चर में वेस्टेज को ओपन भूमि पर न डाल करके, फर्टिलाइजर्स का कम यूज करके, सीवेज का कम, पेस्टिसाइड्स का कम, अर्बन वेस्ट को कम से कम ओपन लैंड में। नॉइज पोल्यूशन में कंट्रोल ऑन द फेयर्स, कंट्रोल ऑन इलेक्शन सिस्टम, कंट्रोल ऑन रैलीज, कंट्रोल ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ
जुलूस, इन पर कंट्रोल कर ले, देन वी सक्सीड टू प्रिवेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब हमारे यहां पर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अर्बन वेस्ट। अब अर्बन वेस्ट क्या है? थ्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, अनवांटेड एलिमेंट, through different types of unwanted goods by the people in open space, in anywhere, that is the wastage of urban। नगरीय अपशिष्ट निपटान क्या होते हैं? नगरों में रहने वाले लोगों के द्वारा अलग अलग अनावश्यक चीजों को फेंक देना, वो आपके कहलाते हैं नगरीय अपशिष्ट। और उसके प्रॉब्लम क्या होती है सभी को पता है। वाटर पोल्यूशन का कारण बनती है, एयर पोल्यूशन का कारण बनता है, लैंड पोल्यूशन का कारण बनता है, वो ऊपर जो अभी डिटेल्स में बताया। इसके अलावा लड़ाई झगड़े, सामाजिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं उससे, तो ये उसकी वेस्टेज। प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स मेनली इन द रेफरेंस ऑफ धारावी। प्रॉब्लम ऑफ द स्लम्स। स्लम्स क्या होते हैं? स्लम्स वो गंदी बस्ती होती हैं जहां पर अलग अलग प्रकार से सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, वो स्लम्स कहलाते हैं। और लार्जेस्ट स्लम्स ऑफ द कंट्री ऑफ एशिया, मुंबई, धारावी। अब हम ये कहें व्हाट आर द प्रॉब्लम विच आर फाउंड इन स्लम्स, एक गंदी बस्ती में क्या क्या समस्याएं पाई जाती हैं, या हम ये कहें हाउ कैन यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ धारावी, तो सेम क्वेश्चन हमारा जो उसमें हो जाएगा। तो स्लम्स धारावी बता चुके हैं हम, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? एजुकेशन, एजुकेशन की मुख्य समस्या है, शिक्षण केंद्रों का अभाव है, लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, गरीब हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू गेन द हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। हेल्थ फैसिलिटीज, अलग अलग प्रकार की बीमारियां वहां पर क्रिएट्स होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर नहीं पाई जाती, मीन्स लैक ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड अदर देन सैनिटेशन आल्सो। वाटर, पानी की भी वहां पर समस्या है, देयर आर नो प्रॉपर सप्लाई इन दिस टाइप्स ऑफ एरिया इन स्लम। सोच सही है। हाउस, घर छोटे हैं, गलियां तंग हैं, उनमें रोशनी का अभाव है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, पेड़ पौधों का अभाव है वहां पर, इस तरह से जो है वो समस्या है। स्टेट, गलियां तंग, अभी बताया, साफ सफाई की सुविधाएं नहीं होती हैं धारावी में, और बहुत ही संकरी गलियां हैं। वेस्ट, अपशिष्ट बहुत ज्यादा ढेर पाए जाते हैं वहां पर, लोग ओपन में ही थ्रोन कर देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं विभिन्न प्रकार की अपशिष्टों को, जिससे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलने का डर वहां पर जो वो कंटिन्यू बना रहता है। लाइट की समस्या वहां पर है, इलेक्ट्रिसिटी जो फैसिलिटी है वहां पर सुचारू रूप से जो है वो नहीं दी जाती। मार्केट, बाजार जो है काफी छोटे और भीड़ भाड़, और उसमें क्वालिटी ना हो करके वैसे ही जो अलग अलग बीमारियों को जन्म देते हैं वो चीजें। अब ये महत्वपूर्ण समस्याएं हैं धारावी में। अब कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको अपोजिट आप लिख सकते हो, टू इंक्रीज द हॉस्पिटल फैसिलिटी, टू इंक्रीज द एजुकेशन फैसिलिटी, टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ वाटर, टू इंक्रीज द प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ हाउस, टू फॉर्म द different types of state, to provide the employment, to develop the market। इस तरह इन समस्याओं को आप सोल्व करवा सकते हैं, और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि धारावी की ये समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। लास्ट टॉपिक है हमारा लैंड डेग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण। लैंड डेग्रेडेशन की मीनिंग क्या होता है? means quality of the land decrease due to the different types of elements। अलग अलग तत्वों से भूमि की जो उत्पादन शक्ति है उसका खराब होना, उसका नष्ट होना, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। means quality decrease by the different types of element, that is known as the land degradation। उसे भूमि निम्नीकरण का नाम देते हैं। अब उसके कारण क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट देखें इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज उसका कारण है भूमि निम्नीकरण का। क्यों है?
क्योंकि इंडस्ट्रीज जो थ्रोन करती है वेस्टेज का, वो फर्टिलिटी डिक्रीज होती है उससे भूमि की, और फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो कॉमन सी बात है लैंड डेग्रेडेशन को बढ़ावा मिलेगा। अर्बन वेस्ट, नगरों से जो वेस्टेज आप फेंकते हैं ये भी भूमि की उपजाऊ शक्ति, भूमि की निम्नीकरण को बढ़ावा देता है। पेस्टिसाइड जो आप ओवर यूज कर रहे हैं भूमि में, वो नाटकीय रूप से तो उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसका बाद में काफी हार्मफुल इफेक्ट उसके पड़ते हैं, वो भी भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा देते हैं। केमिकल जो आप यूज करते हैं, ओवर इरिगेशन, अत्यधिक जो सिंचाई कर देते हैं आप, सारा दिन खेतों को पानी से लबालब रखते हैं, वो भी भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि जो उपजाऊ तत्व है पानी के साथ नीचे चले जाते हैं और बंजर भूमि की लेस जो है ऊपर तैयार हो जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये तो है ही, स्थानांतरित कृषि जो जंगली लोग करते हैं या अनेक लोग हिली एरिया में भी अब भी करते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पेड़ पौधों को काट देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं, उससे भी भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिलता है। अर्बनाइजेशन, जो नगरीकरण बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है दैट इज कन्वर्टेड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, कम्युनिकेशंस है, हाउस होल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे स्टेशन है, उनमें तब्दील किया जा रहा है। उसका कारण क्या है? भूमि की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है, अर्थात एग्रीकल्चर के लिए भूमि कम हो रही है, तो वो भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। इंडस्ट्रीज जैसे कि पहले ही आ चुका है। तो इस तरह से आज हमने ये टॉपिक किए जिसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसके टाइप्स, उसके कोजेस, उसके प्रिवेंट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप, या फिर अर्बन वेस्ट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे दूर किया जा सकता है, स्लम एरिया सबसे बड़ा कौन सा है, धारावी है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, और भूमि निम्नीकरण, ये हमने आज की। टुडे आई ट्राई अगेन फॉर माई बेस्ट। इफ यू वांट टू share my video and like my video, please firstly subscribe my channels, stay home and be happy। अपना भी ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक्स टू